It is sharp 10:30 and we in Kolhan University believe that time and tide waits for none. And our Honorable Vice Chancellor, Sri Manoj Kumar IAS, cum Divisional Commissioner is here with us. And on his behalf, I welcome all of you to witness to this momentum occasion where the Prime Minister is going to launch the PM Usha Fund. Now you all believe that in 2013, RUSA, Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan, began very earnestly. In 2018, RUSA 2.0 was launched. But what does the word RUSA means? It does not signify anything. So, the policy makers very ingeniously came up with the word Usha. Usha, as we all know in Hindi, denotes a new dawn, एक नया सवेरा. And this new dawn, ये एक नया सवेरा हम सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए है. और आज जो 78 ये 78 प्रोजेक्ट्स totaling up to some 3,600 crores will be launched is indeed very historic. और ये नया सवेरा, नया dawn हम सब के लिए है. As teachers, we are vital stakeholders. As students, you have to believe in everything. So we are going to commence the program, and I invite all our dignitaries, led by our Captain and Vice Chancellor, Sri Manoj Kumar Sir IAS, to come for the lighting of the lamp. सर उधर साजिएगा सर उधर साजिए सर, आप उधर साजिए पीछे रखता है. Now I call upon the members of the choir, KU choir, to come and render the Kul Geet. And please, while they sing the Kul Geet, I expect all of you to be standing up in honor of our Kul Geet. So please come for the Kul Geet. सुबह नई किरण नई नई जवानियाँ छोड़ जाएंगे सभी नई नई निशानियाँ. नई सुबह नई किरण नई नई जवानियाँ छोड़ जाएंगे सभी नई नई निशानियाँ. नई सुबह नई किरण नई किरण नई किरण. गगन में ये सितारे सारे मिल रहे, कोल्हान विश्वविद्यालय में फूल प्यार खिल रहे. पगों में बांध चल पड़े हैं ऊर्जा की आंधियां, पगों में बांध चल पड़े हैं ऊर्जा की आंधियां. नई सुबह नई किरण नई नई जवानियां छोड़ जाएंगे सभी नई नई निशानियां. नई सुबह नई किरण नई किरण नई किरण. कोल्हान विश्वविद्यालय इस पथ पर कैसे अग्रसर होंगे, इस बारे में जानकारी देने के लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को हम अपने यंग एनर्जेटिक एंड वेरी फ्लैम्बॉयंट रजिस्ट्रार, जो हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंस के डीन भी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं. सर प्लीज कम, द स्टेज इज ऑल योर्स. Good morning, Johar and Namaskar to all of you. On the behalf of the Kolhan University family, I welcome dignitaries on the dais and dignitaries of the dais.
for the very beautiful morning and for a glorious day for Kolhan University. I welcome you, sir, Sri J.B. Dubey, sir, syndicate member of Kolhan University, as well as retired senior IAS officer. I welcome you, sir. I welcome Sri Rajesh Shukla ji, syndicate members and a prominent lawyer. I welcome our Honorable Vice Chancellor. In his vision and his commitment, we are moving fast forward. It is a very beautiful day for us to explain you and to tell you that we have succeeded to get the great B during his leadership. I welcome on the dais our DSW, Sri S.C. Das ji, Dr. S.C. Das ji. I welcome our finance officer, Sri Vinay Kumar ji. I welcome our finance advisor, Ramesh Kumar ji, and last but not the least, on the dais, Dr. M.A. Khan. I welcome all the deans of the faculties, all the head of departments, NAC coordinators, teachers, faculty members, students, all the stakeholders of the university, as well as the students, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम शिक्षकों का अस्तित्व या विश्वविद्यालय का अस्तित्व इन विद्यार्थियों की वजह से है। I am very glad and Vice Chancellor is very pleased to see that all the students are pouring in the hall and some of them are standing in the queue. It is a good day for us. Sir, this is the moment for us to actually आज हम लोग जिस पर्पस के लिए मिल रहे हैं उसमें कोल्हान विश्वविद्यालय बहुत भाग्यशाली रहा है कि भारत के 78 विश्वविद्यालयों में से कोल्हान विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है जिसको प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 20 करोड़ का ग्रांट मिला है। वह हमारे लिए एक सबसे बड़ा मोमेंटम है। यह जर्नी हमारी 2009 में शुरू हुई है और आज हम लगभग 15 साल बाद इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था झारखंड का जिसने नैक के ग्रेडिंग के लिए प्रयास किया। हम छोटे विश्वविद्यालय जरूर थे, नए विश्वविद्यालय जरूर थे। हमने ग्रेड सी प्राप्त किया, हमने दूसरे साइकिल को प्राप्त किया, हमने ग्रेड बी भी प्राप्त किया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो पर्पज है हमारा, वो पर्पज सिर्फ इसलिए है कि जो ग्रांट दिया जा रहा है वह म्यूजियम कॉम्प्लेक्स ग्रांट अप्रूव फ्रॉम पीएम रूसा। यह जरूरत क्यों पड़ी? हमारे रूसा फंड से हम लोग विश्वविद्यालय ने एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया था जो छोटा हो पा रहा था। इस वजह से जब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुआ, यह डिसाइड किया गया कि जो नए चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को इन्हेंस करने की बातें हैं, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह का म्यूजियम को बनाने की जरूरत है। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो बनेगा, जिसका आपका डिजाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज। ये कॉम्प्लेक्स है जो जस्ट इस कैंपस के बगल में बनने को है। ये आपके सामने उसका है। नेक्स्ट, इसके भीतर जो ब्लूप्रिंट है उसमें ग्राउंड 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे। एक है टीआरएल म्यूजियम होगा जो ग्राउंड की पहला बेसमेंट में पार्किंग है, उसके ऊपर टीआरएल म्यूजियम है। उसके ऊपर एकेडमिक डिपार्टमेंट्स है जिसमें जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उनको वहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। उसके साथ कौशल विकास केंद्र की संकल्पना की गई है जो ट्राइबल कौशल हैं जिनको इन्हेंस करने की प्रयास किया जाएगा। उसके नेक्स्ट में कॉन्फ्रेंस हॉल टीआरएल थिएटर है जिसमें बच्चे जो वोकेशनल कोर्सेज में रहे हैं या जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्टेज दिया जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसका जो पर्पज है, जो ट्राइबल म्यूजियम जो हमारा बनाया गया था वो 2021 में था। उस समय तत्कालीन महामहिम और हमारे तत्कालीन वाइस चांसलर के संदर्भ में हो पाया था और उसको उसी समय यह महसूस किया गया कि इस म्यूजियम को और बढ़ाया जा सके और उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जब हमारे पास
2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो हम लोगों ने उसको इनकलकेट किया और इसको भेजा। हम शुक्रगुजार हैं कि भारत सरकार का, यूजीसी का, प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का, जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया और हम लोग को मिला है ग्रांट। इसमें जो है, जो पर्पज है इसका, रूसा पीएम रूसा का पर्पज है, उसमें पहला है कि जैसे मीन टू एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट के तहत ये इसका पर्पज है। यह जो ग्रांट है कवर्ड होता है पूरे सरकारी व्यवस्थाओं को, सरकारी यूनिवर्सिटीज को और उनसे एडेड यूनिवर्सिटीज। यह एक और काम करता है, पीएम उषा इनकरेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू गेट लिंक टू द इंडस्ट्री एंड द मार्केट to strengthen skill, innovation, and employability. Its focus on the college where SC, ST, and OBC and women students are more in numbers. Such institute is situated in remote and aspirational areas, districts. Our university, मेरा विश्वविद्यालय जो है वह इसी क्षेत्र में आता है और हमारे यहाँ जो बच्चों है और खास करके महिलाओं का भागीदारी, आप किसी भी क्लास में चले जाइए, आज भी अभी देख लीजिए हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उसमें 70% हमारी बच्चियाँ हैं, 20-30% हमारे स्टूडेंट हैं और वो ज़्यादातर हमारे गांव और दूर दराज के इलाके से आते हैं। उनमें इतनी जिज्ञासा है कि वो क्लास के लिए साइकिल चला के 20-20 किलोमीटर से आते हैं। उनके में कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया जाए, उनको कैसे इनकलकेट किया जाए जिस पर उन पर गलत तरह के संगीत का असर न पड़ पाए, इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मैं सबसे पहले अपने छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे सिंडिकेट सदस्य श्री तुबिर सर को शॉल ओढ़ा करके सम्मानित करें। सर इधर देखिएगा सर। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इस कार्यक्रम में कोल्हान के प्रगति के प्रतीक कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति, कोल्हान के यशस्वी आयुक्त आदरणीय श्री मनोज कुमार जी, सिंडिकेट के हमारे सम्मानित सदस्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे आदरणीय श्री जे.डी. तुबिर जी, कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, संचालनकर्ता उप कुल सचिव M.K. मिश्रा जी, मंच पर बैठे श्री वित्तीय सलाहकार श्री वर्मा जी, DSW S.C. दास जी, प्रोक्टर M.A. खान जी, वित्त अधिकारी विनय सिंह जी और सामने मैं देख रहा हूं परीक्षा नियंत्रक श्री चौधरी जी, पूर्व वित्त अधिकारी डॉक्टर P.K. पानी जी जो प्रख्यात और शास्त्री भी हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूं D.N. महतो जी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व स्टार हैं, पूर्व वित्त अधिकारी तो बता दिए पानी साहब, मिश्रा जी हमारे P.K. मिश्रा जी बैठे हैं। सामने मैं देख रहा हूँ पद्मजा सेन जी बैठी हैं, सबसे मेरा पुराना लगाव रहा है, कस्तूरी कोईपाई जी हैं और इसके अलावा सुरालिन टोपनो जी को भी बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। SK महालिक जी हमारे वर्कर्स कॉलेज के प्राचार्य हैं। मैं सभी को जानता हूँ, सबका नाम ले सकता हूँ, समय का अभाव है। सभी प्राध्यापकगण, सभी विभागाध्यक्षगण, सभी छात्र छात्राएँ और मीडिया के साथीगण, आज ये विशेष अवसर है जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उषा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है और ये जरूरत तभी पूरा होगी जब वित्तीय सहायता मिलेगी। मुझे लगता है आज वित्तीय सहायता उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत
शिक्षा मंत्रालय ने की, जो केंद्रीय योजना है, इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में उच्च शिक्षा तक पहुंचना, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ाना और उच्च शिक्षा के अनुसंधान और नवाचारों के लिए सक्षम माहौल बनाना है। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। इनकलाब तो आना वक्त का तकाजा है, वह तो आएगा ही, पहले तो हवा पैदा कर, और परवानों का जलना तो कुदरत की मौज है, वह तो जलेगा ही, पहले तो समा पैदा कर। तो आज प्रधानमंत्री जी ने वह समा पैदा कर दिया है उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने की। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ हमको आने वाले दिनों में दिखे। उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन, शैक्षणिक और परीक्षा सुधार निश्चित करना, और एक तरफ स्कूली शिक्षा और दूसरी तरफ रोजगार के बाजार के साथ पुराने और आगामी संबंध स्थापित करना, मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस उषा योजना की। और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ हम सबों को आने वाले दिनों में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, इस अवसर पर आप उपस्थित हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से इसका लाभ हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you, sir. And now we call upon a syndicate member, and like I've said, he's also the superannuated Indian Administrative Service Officer, Sri J.B. Tubit, sir. Sir, please come. The stage is all yours. Boys and girls, listen with rapt attention and silence what sir has got to say. Thank you. मंच पर विराजमान हमारे कोल्हान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और इस क्षेत्र के हमारे आयुक्त आदरणीय श्री मनोज कुमार जी, हमारे मित्र और सहयोगी श्री राजेश शुक्ल जी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी, डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी के हमारे पदाधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, let me first thank you, all of you, for inviting me on this auspicious occasion when our Prime Minister, beloved Prime Minister, is launching a very important program of USHA. और अभी आपको कुछ देर पहले हमारे उद्घोषक महोदय ने बताया कि USHA का क्या अर्थ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, पूरे देश ने संकल्प लिया है कि 2047 जो हमारे आज़ादी का 100 वर्ष होगा, उस दिन हमारा देश कैसा होगा, उस देश में हम किस स्तर पर पहुँचेंगे। और आप अभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस अवधि में विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए। जब हम इस तरह का संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से देश का प्रत्येक नागरिक का क्या कंट्रीब्यूशन होगा और आने वाले कुछ वर्षों में वो अपने को कहाँ देखता है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। विशेषकर हमारे जो युवा साथी हैं जो आज पीजी में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये सोचना है कि आने वाले 10 वर्षों में आप कहाँ रहेंगे। जब देश प्रगति कर रहा हो, महिलाओं के लिए हम रास्ते खोल रहे हों, युवाओं के लिए हम रास्ते खोल रहे हों, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की हम बात कर रहे हों, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हों, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक साथ अगर 100 सैटेलाइट लॉन्च करने की हम क्षमता रखते हों, और इस तरह अनेकों चीज़ जिसके बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इन सब तरह की जब काम हमारे सामने आएंगे तो एक वातावरण पूरे देश में पैदा होगा। और ये वातावरण आप जानते हैं कि न केवल इस देश में, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है
जिसका ग्रोथ रेट 7.5% से ऊपर चल रहा है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट, जबकि पूरी दुनिया में अभी 3%, 4% इसी लेवल पर चल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही हो, वैसी परिस्थिति में हमें देखना है कि हमारा स्थान कहाँ होगा। और इसलिए हम सभी साथी जो यहाँ हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, उनको कमर कसने की ज़रूरत है, उस ज्ञान को अर्जित करने की ज़रूरत है जिसमें आने वाले समय में वो अपना भविष्य देखता है। और इसलिए ये आज का जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे हायर एजुकेशन से नीचे जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके लिए नई योजनाएं चलाई हुई है। हमने नई शिक्षा नीति को अडॉप्ट किया है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हमने IIT, IIM और अनेक ऐसे जो हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हमने खोला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम विचार करेंगे तो एक वातावरण हम क्रिएट करते हैं, और उस वातावरण में छात्रों का, युवाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे हमारे फैकल्टी हैं, सम्मानित फैकल्टी हैं, वो भी अपने को खोलें, क्योंकि आने वाला समय आप ऐसे युवाओं को तैयार करने के लिए कृत संकल्पित होंगे जिसके लिए आपको भी तैयार होने की ज़रूरत है। और इसलिए जो ये कार्यक्रम है, अभी राजेश जी आपको बता रहे थे, नवाचार का इसमें स्कोप है। हम अपने लीडरशिप कैसे विकसित करें, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, और इस तरह अनेक क्षेत्र हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ एक क्षेत्र ही खुले हुए होते थे, या तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। आज आप खेल के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी बन सकते हैं, और अनेकों क्षेत्र हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ आपको निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी में इस तरह के एक सेल होने चाहिए जो लड़कों को, युवाओं को बताएं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे देश के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम में मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई भी देता हूँ। और जितने भी हमारे जो डेफिसिट एरिया हैं, जैसे मान लीजिए कि मनोहरपुर है, मझगांव है, या जंगलों के अंदर के जो हमारे क्षेत्र हैं, उन इलाकों से हमारे बच्चे कैसे बाहर निकल के आए, आने वाले समय में कितने बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, उनका टारगेट क्या होगा, और उन टारगेट को हम एब्जॉर्ब करने के लिए यूनिवर्सिटी किस रूप में तैयार है। मुझे लगता है न केवल ट्राइबल म्यूजियम, बल्कि एक हमारा एक टीम होना चाहिए जो इन सारे कॉलेजों में इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए एक कार्य योजना, एक प्रस्ताव बना करके समेकित रूप से राज्य को देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसमें और भी पैसे आएंगे तो इस यूनिवर्सिटी को, जो पिछड़ा क्षेत्र का यूनिवर्सिटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम कैसे ले सकें, इसके लिए हम सबों को मिलकर काम करना चाहिए। मैं आप सबों को इस अवसर पर एक बार फिर बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Let me assure you, sir, that our faculty members, we have pulled up our socks, and many of us, we are up to date. We've indulged in many of the MOOCs program, massive online open courses. The stakeholders, and it is for them, the vital stakeholders are students. We are addressing each and every issue, sir, and we are going to ensure that in Kolhan, we do not have anything known as the center and the periphery. In fact, all the colleges become part and parcel of this center, sir. And with our registrars, sir, so we are working in this direction. So, this said and done, now I call upon our Honorable FS, sir, Financial Advisor, because sir told us, and we all know what is happening to Japan, what is happening with China, and this PM Usha, which direction is going to take India towards. So I call upon our Financial Advisor, Sri Ramesh Kumar Verma, sir, to address us. Sir. मंच पे आसीन माननीय कुलपति सह आयुक्त महोदय, हमारे माननीय सिंडिकेट सदस्य तुबीर सर एवं माननीय सिंडिकेट के शुक्ला साहब एवं मंच पे उपस्थित DSW साहब, रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर साहब एवं FO साहब एवं सामने उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के
पदाधिकारीगण एवं शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण एवं यहाँ पर उपस्थित प्रेस के सम्मानित सदस्यगण, सरकार का हमेशा उद्देश्य रहा है यह देखते हुए कि दिनों को दिन जो है बच्चों की संख्या हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते जा रही है, तो उनके पास वो नज़दीक पहुँचे, जिससे कि वो दूर से जो बहुत पहले शुरुआती दिनों में हुआ करता था कि दूर दूर से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो हायर एजुकेशन को उनके तक पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार चाह रही है कि महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी सब ऐसे दूर दूर क्षेत्रों में पहुँचे जिससे उनको सुविधा हो और हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। अभी के दिनों में यह आवश्यकता होती है कि आवश्यकता हो गई है कि आप सिर्फ रोजगार के लिए ही पढ़ाई न करें, बल्कि रोजगार उत्पन्न करने का भी कार्य करें। और इस उद्देश्य से नए नए सुविधाएँ, नए नए सिलेबस में आप पाठ्यक्रम में देख रहे होंगे कि इस तरह के विषयों को लाया जा रहा है कि आप एक रोजगार को उत्पन्न कर सकें। और इसी उद्देश्य से बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे कि जन जन तक, लोगों तक यह पहुँचे, ये आवश्यकता महसूस करते हुए कि अब हायर एजुकेशन को इस स्तर पर ले जाएं कि हमारी जो अभी जैसे तुभी सर बता रहे थे कि वर्ल्ड में हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 2 पर पहुँच सके। इसी सब प्रयासों के का प्रभाव भी हम लोग को दिख रहा है कि आज के दिनों में हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छा आगे कर रहे हैं, नए नए उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सब में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ये अवसर मिला हुआ है हमारे देश के नागरिकों को कि इस सुविधाओं का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ के इस करके देश के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि आप ही लोग जो है आगे भविष्य हैं। और आगे के आने का समय 20 साल जो रखा गया है कि 47 तक जब हमारे 100 साल की प्रजातंत्र की व्यवस्था हो जाएगी, उस समय आप लोग ही इस देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होंगे। और इसी को सुविधापूर्वक बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और अतः अनुरोध है कि आप लोग किशोर हैं, अपने पढ़ाइयों को भी बहुत ध्यान दें और ऐसी पढ़ाई करें कि जो है आप आगे जाकर अपना राज्य का, देश का और विश्व का नाम ऊंचा कर सकें। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब आपके सामने हम जिन व्यक्ति को पेश करने जा रहे हैं, जो हम सबसे बीच बात करेंगे, यंग, डायनेमिक, मल्टी फैसेटेड, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, ही इज वेरी ह्यूमेन। और उन्हें लगता है अगर हमारे शरीर में खून का अगर एक कतरा भी है तो वो कतरा लोगों के काम आना चाहिए। ये सोच, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रखता है हमारे बीच में है, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने में हम अपार हर्ष महसूस करते हैं। और वो है हमारे यंग, एनर्जेटिक एंड वेरी डायनेमिक फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर बीके सिंह सर। प्लीज कम, द स्टेज इज ऑल योर्स सर। धन्यवाद। डाइस पर बैठे हुए सभी हमारे अभिभावक और सामने भी बैठे हुए जितने भी टीचर्स, मैं समय कम लूँगा क्योंकि यहाँ जब फाइनेंस की बात होती है तो फाइनेंस अच्छा भी है और ख़राब भी है। जब मुझे न्यूज़ मिला कि हमारे यूनिवर्सिटी को इतने करोड़ रुपया का सेक्शन हुआ है ये बनाने के लिए, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और ये बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग और आगे इस तरह का काम करें, ताकि आज अगर मुझे 20 करोड़ मिला है तो हम ऐसा DPR बना के भेजें कि आने वाले दिन में मुझे भी 100 करोड़ भी हमारे कुल्हान विश्वविद्यालय को मिले। धन्यवाद। The time is now apt for calling upon our Honorable Vice Chancellor, Sri Manoj Kumar, IAS, and also the Divisional Commissioner. Sir, let me tell you, is a workaholic. Sir also has a mission to root out not only corruption but social evils from Kolhan region. So students, please listen to sir with rapt attention. Here is sir.
जितना एक्चुअल है उससे ज़्यादा तारीफ करने के लिए हेमंत सिंह को धन्यवाद। रेस्पेक्टेड तुबिर साहब, राजेश शुक्ला जी, रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब, गलू साहब, फॉर्मर ठाकुर साहब, अनिल जी, डीन्स, हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, टीचर्स, मेरे नौनिहाल दोस्त एवं प्रेस और मीडिया के मेरे दोस्त, ये मौका है कि आज हम लोग ऑनरेबल पीएम द्वारा लॉन्च किए जा रहे प्रोग्राम पीएम उषा कार्यक्रम का स्ट्रीमिंग देखेंगे एक साथ बैठ के और उनके मुखारबिन से सुनेंगे उनकी योजना क्या है और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए क्या क्या प्लान है उनके पास और हम लोग के लिए क्या डायरेक्शन है, हम लोग को क्या करना चाहिए, उस पर उनकी बातें सुनेंगे। तब तक इन द मीन टाइम हम बतलाना चाहेंगे, कुछ अन्य वक्ता ने भी बतलाया वैसे, ये पीएम उषा कार्यक्रम से लिखते हैं इसको प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो उच्चतर शिक्षा के क्वालिटी को उत्तरोत्तर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें, उसमें क्वालिटी लाएं और उसको स्किल से जोड़ते हुए, हमारे वैल्यू सिस्टम से जोड़ते हुए, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर्स हैं, उसको इम्बाइब करते हुए, उसको इरेडिकेट करते हुए नहीं, हम स्ट्रेंथन करें अपने सोशल वैल्यूज़ को, अपने नॉर्म्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को। एम्प्लॉयबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट आया था कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी ओनली 3% है। डिग्री, इसका मतलब डिग्री केवल इंस्टीट्यूशंस बांट रहे हैं, कई जगह पर बेचे जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इस पीएम उषा कार्यक्रम का और साथ साथ जो विकास की रफ्तार में पीछे छूट गए उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का कार्यक्रम है, क्योंकि पीएम उषा कार्यक्रम में जो नॉर्म्स रखे गए हैं उसमें उस यूनिवर्सिटी को, उन यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है जो आइदर बहुत दूर दराज क्षेत्रों में कर रहे हों, ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हों या LWE या अफेक्टेड एरिया में काम कर रहे हों, जहाँ महिलाएं रिलेटिवली कम इन्वॉल्व हो रही हों, उस एरिया में उसको सबको सर्टेन परसेंटेज वेटेज दिए गए हैं ताकि वो कम्पीट कर सके। तो आप देखते हैं कि कोल्हान यूनिवर्सिटी सारे कंपोनेंट में, सारे जो उसके वेटेज के लिए रखे गए आइटम सभी में क्वालिफाई करते हैं। ट्राइबल एरिया भी है, लघु अफेक्टेड भी है, दूर दराज वाला इनएक्सेसिबिलिटी भी है और महिलाओं में रिलेटिवली परसेंटेज जो नेशनल लेवल पर देखते हैं वहाँ पर इनरोलमेंट भी कम है। तो उस लिहाज से कोल्हान यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करता है ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेने के, और वो सारा डिपेंड करता है हम लोगों पे कि हम कितना जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज पाते हैं। तो पीएम, ऑनरेबल पीएम का ये कार्यक्रम है, ये सपना है, ये सोच है, जो विज़न है, वो डिपेंड, उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि हम लोग कितने सिंसियरिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक मतलब ड्यूटी हम सबों की आ गई कि जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए इस फंड को दिया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी और बढ़िया क्वालिटी के साथ निष्ठापूर्वक उसको हम लोग कंप्लीट करें। इस 2-3 साल पहले की घटना है कि यहाँ पे ये ऑनरेबल वाइस गवर्नर साहब आए थे जिन्होंने उद्घाटन किया था यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम का। तो पाया गया था कि म्यूजियम रिलेटिवली छोटा है, रिक्वायरमेंट से कम है, तो इसको लार्जर बनाया जाए। बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ एक प्रोजेक्ट ये भी सबमिट किया गया था कि ट्राइबल म्यूजियम के साथ साथ ट्राइबल लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, क्या उसके डेवलपमेंट के लिए सॉफ्ट एवं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो
इमीडिएट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है, सॉफ्ट के लिए भी उस पर आगे हम लोग काम करेंगे और जो प्रॉपर अपॉइंटमेंट होना है सॉफ्ट डेवलपमेंट के लिए वो सब भी हम लोग काम करेंगे। इमीडिएट आज का जो 20 करोड़ का प्रपोजल आया है वो है 20 करोड़ का जो फंड रिलीज हुआ है वो इसके लिए है, ट्रैवल, म्यूजियम प्लस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ समझाया भी है। तो एक चीज़ है कि ये कार्यक्रम मूलतः हमें ट्राइबल एरिया में ट्राइबल वैल्यू सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए, ट्राइबल वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, डायनामिक प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश किया जाएगा। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी कि सिर्फ पढ़ लिख के बेरोजगारों की श्रेणी में न आए, वो स्किल अपग्रेड उसको इतना कर दिया जाए कि 10, 20, 50 का स्वयं एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ वो स्किल भी की आगे बिजनेस बढ़ा सके, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे कि आप अपना अगर आप में स्किल है तो आप सरकार से बहुत ही नॉमिनल हाईली सब्सिडाइज रेट पर लोन लेके अपना काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट। अभी देखिए हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड जो है इतना हाई है, कम से कम 2055 तक आगे आने वाले 30-31 साल तक हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड वर्ल्ड में सबसे ऊपर है, सबसे बढ़िया है। तो उसको ट्रैक करना भी जरूरी है ताकि हम वर्ल्ड को स्किल्ड पर्सन दे सकें। आप दुनिया के किसी क्षेत्र में जाएं, आज के डेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑनरेबल पीएम का विज़न है उसके मुताबिक हमारा एक साइजेबल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का रहेगा कि दुनिया के तमाम देशों में बढ़िया स्किल में हमारे लोग इन्वॉल्व होंगे और उसके लिए स्किल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी क्षेत्र चुना जाता है, जैसे अभी ये पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया का क्षेत्र है, तो ट्राइबल क्षेत्र के जो स्किल है वो अपग्रेड करना, ट्राइबल वैल्यू सिस्टम को अपग्रेड को बढ़ावा देते हुए स्किल को बढ़ाना एक बहुत बड़ी उम्दा सोच है जिसको इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो उस कार्यक्रम में हम लोग अच्छा लगेगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी था, यूजी के सेक्रेटरी से भी बात हुई थी और एडिशनल सेक्रेटरी उच्चतर शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि तमाम छात्रों को अपने कैपेसिटी के मुताबिक बुलाएं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, साइजेबल ऑलमोस्ट सारे सीट भी बढ़ गए हैं ऑडिटोरियम में और स्टूडेंट्स इतना सिंसियरिटी के साथ आए हैं। आई एम थैंकफुल टू देम कि इस कार्यक्रम से चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और लाभ उठाएंगे। और एक हमारा वीकनेस है ज़रूर, इस जब हमारे मीटिंग छात्रों के साथ होती है तो एक बात ज़रूर हम उनके साथ करते हैं कि आज के दिन में ड्रग का मीनांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ड्रग से अपने आप को दूर रखना ज़रूरी है और क्योंकि ये बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। ड्रग्स के आप स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के और इवन +2 हाई स्कूल के इर्द गिर्द बहुत सारे ये पेडलर्स घूमते मिलते हैं। हम लोग प्रशासनिक तौर पे उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन डिमांड साइज कंटेनमेंट के लिए आप तमाम दोस्तों का, जो मेरे नौनियाल दोस्त हैं, इसका सहयोग जरूरी है कि न यूज़ करें न यूज़ करने दें और जहाँ कहीं कुछ भनक मिले तो प्रशासन को ज़रूर खबर करें। ये आपका एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा गिलहरी सा प्रयास भी राष्ट्र को उन्नत कर सकता है। आपको बताया कि आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे अगर अपने को ड्रग्स में ढोक देते हैं तो, और आपके पीयर पीछे छूट, आपके पीयर्स आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे छूट जाएंगे। तो ये राइट टाइम है कि अपने को इन्वॉल्व करें कि ड्रग्स से स्वयं को, अपने दोस्तों को भी बचाएं। तो ये एक छोटा सा संदेश है। इस मौके पे हम समझते हैं कि हमारे ये दोस्त इसको अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे और एक सशक्त राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। एक छोटा सा केवल कह देना चाहते हैं कि 2 साल पहले हम 4th फेज ट्रेनिंग में गए थे लवसना, तो 108 ऑफिसर्स थे उसमें। तो उसमें कहा गया था
अंतिम दिन की आप लिखिए 2047 का भारत कैसा होगा। सभी अपना इंडिपेंडेंटली लिखे हैं, कोई किसी के साथ इंटरेक्ट करके नहीं लिखे हैं। हमने भी लिखा था भारत विश्व गुरु होगा, और आपको बताएं 80% IAS ऑफिसर्स ने लिखा भारत विश्व गुरु होगा 2047 में। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी ये प्रयास है। तो हम समझते हैं कि बच्चे अगर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से अचीव होगा, और ऑनरेबल PM का जो सपना है हम लोग साकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इंडीड सर के भाषण से 2 मैसेज आता है। नंबर 1, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, यानी इम्बाइब दोज रिक्विजिट स्किल्स। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। आगे बढ़ना है तो हमको अपने आप को अपग्रेड अपस्किल करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, स्लोगन ये होना चाहिए, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स किल्स बोथ द बॉडी एंड द सोल। अगर आपका सोल मर गया, अंतरात्मा मर गया, तो ये शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो प्लीज लिसन टू व्हाट सर हैज सेड, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, नहीं तो ये सिर्फ ड्रीम रहेगा। नाउ वी आर नियरिंग द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन। द फंक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स एट 11:30, जो हमारे प्रधानमंत्री सर आएंगे। अब हमारा यहाँ का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। एंड to give the vote of thanks, now I call upon our Proctor, Dr. M.A. Khan, sir. Thank you, sir. मंच पर मौजूद हमारे यूनिवर्सिटी के गार्जियन और वाइस चांसलर कम डिविजनल कमिश्नर सर, सिंडिकेट मेंबर्स राजेश शुक्ला सर और तुपिल सर, DSW सर, फाइनेंशियल एडवाइजर सर और तमाम ऑफिसर्स, आज ये जो फंक्शन जो हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग करीब 1200 यूनिवर्सिटीज़ में 78 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया गया, जिसमें झारखंड की 2 यूनिवर्सिटियां हैं। पहला विनोबा यूनिवर्सिटी, जिसको 100 करोड़ का ग्रांट मिला है, और दूसरा हमारा विश्वविद्यालय जिसका नाम कुल्हान यूनिवर्सिटी है, इसको भी 20 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है ट्राइबल सेक्टर में डेवलपमेंट के। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। सबसे पहले मैं कुल्हान यूनिवर्सिटी की टीम को बधाई देता हूँ, थैंक्स अदा करता हूँ कि जिनके प्रयासों से ये फंड हम लोगों को मिला है। उसके बाद हम अपने गार्जियन VC सर को थैंक्स देना चाहते हैं कि जिनके प्रयासों से इतने शॉर्ट टाइम में परसों रोज 4 बजे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला कि क्या क्या करना है, और विदिन 24 आवर्स इतना भव्य कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा पाए, तो उनके गार्जियनशिप में हुआ और ये उनका क्रेडिट है। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं अपने सिंडिकेट्स मेंबर्स को, यानी JB तुबिल सर को और राजेश शुक्ला सर को, जो इतने शॉर्ट टाइम में इनको इन्फॉर्म किया गया और वो हमारे इन्फॉर्मेशन पे आए और अपने आशीष बचनों से हम लोगों को नवाजा। बहुत बहुत थैंक्स सर। हम थैंक्स देते हैं अपने तमाम ऑफिसर्स को, तमाम डीन्स, हेड्स, फैकल्टी मेंबर्स को, जो इतनी प्रॉम्प्ट होकर के यहाँ मौजूद उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि अभी कार्यक्रम आगे भी चलेगा। ये एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट अभी चंद मिनटों में शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को भी बहुत थैंक्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स को थैंक्स। लास्ट में जिनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी ये जितनी कवायद हो रही है, जितने चीज़ें की जा रही हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके स्टेक होल्डर हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर अपने आप को, जैसा कि VC सर ने कहा, कुछ चीज़ें बताई कि किससे किससे आपको बचना है, वो भी आपको ख्याल रखना है कि खुद तो बचें, दूसरे को भी बचाएं, और ये प्रयास करें कि ये ड्रग्स का जो मामला है हमारे कैंपस में किसी भी सूरत में ना कर पाए। अगर है किसी के पास इंफॉर्मेशन
तो वो ज़रूर बताएं। और चूँकि मैं डिसिप्लिन को डील करता हूँ, इसलिए स्टूडेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि आप डिसिप्लिन रहेंगे और अपना काम करेंगे। और इस चैलेंज को, जो ये ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है, इसके आगे जो कार्यक्रम है, इसमें आपकी भागीदारी है। और ये चैलेंजेज आएंगे और आपको फेस करना है, हम लोग सबको मिलकर फेस करना है। और इसके लिए आप स्टूडेंट्स के लिए 2 पंक्तियाँ हैं कि सफ़र पे आज वही कश्तियाँ निकलती हैं, सफ़र पे आज वही कश्तियाँ निकलती हैं जिन्हें खबर है कि हवाएं भी तेज चलती हैं। तो ये आपको सफल बनाना है, हमको मिलकर सफल बनाना है। और अंत में मास कम्युनिकेशन की टीम करीम सिटी से जो आई हुई है, उसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल पे, रजिस्ट्रार साहब एक फ़ोन कॉल पे वो आए और कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। क्योंकि अभी इसके आगे भी ये है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो उनको भी धन्यवाद। Thank you, sir. And now, I thank each one of you. Team Kolhan, the Creative Collective. Team Kolhan, the Creative Collective, led by Honorable Vice Chancellor. Now, sir, may I request you to please take your seats and be witness to the historic launch of the digital PM Usha project. आपसे ये निवेदन है, आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने अपने स्थान, प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख होंगे, शांतिपूर्वक अपने अपने प्रधानमंत्री जी आवे कर दें, तो अपने अपने थारा पर बही आओ। सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। जम्मू के माननीय सांसद श्री योगी किशोर शर्मा जी आज इस सभा स्थल पर मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से 2 युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम है साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस सब इंस्पेक्टर सौरभ शर्मा। को ज्ञात है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2023 को की थी। इस यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में 4405 जगहों पर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 42 लाख लोगों ने शिरकत की। जगह जगह भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और उनका पंजीकरण करवाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ मिला। अब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। की बात है, सबसे पहले हमारे साथ हैं वीना देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। वीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं।
आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं बीना जी। हाँ, देखते हैं। हाँ मीना जी नमस्ते। मीना जी जरा अपने विषय में बताइए कि इस योजना का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। भारत माता की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, ब्लॉक्स में ऐसी ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूप में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और
प्रोग्राम आज के दिन का, और वो है महिला कॉलेज चाईबासा के बीएड डिपार्टमेंट की लड़कियों द्वारा एक नृत्य, सामूहिक नृत्य, एक ग्रुप डांस। सो प्लीज बी सिटिंग, एंड इसके बाद फिर हम नेशनल एंथम के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ हम अपना कार्यक्रम का समापन करेंगे। लास्ट प्रोग्राम, और जैसा कि हम कहते हैं अगर कोई प्रोग्राम शुरुआत होती है तो शुरू का अंत होता है, तो हम अंत करेंगे नेशनल एंथम गा के 52 सेकंड में। राष्ट्र गान नेशनल एंथम जन गण मन। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम।